Welcome back to another video, guys. And in this video we are discussed what are variables and what are the naming convention to follow to declare a variable and what are the types of variables in Java. So let's start this video. So first we are creating our Java file. Variable.java के नाम से हम फाइल बना लेंगे. And let me zoom it. Okay. I think it is visible now. Okay. क्लास बना ली हमने वेरिएबल नेम से ही. एंड इसमें हम पब्लिक स्टैटिक ओके मेथड डिक्लेयर कर लिए. फर्स्ट वी नो व्हाट इज वेरिएबल्स. सो वेरिएबल्स आर द नेम विच इज एसोसिएटेड विद द मेमोरी अलोकेटेड टू द डेटा टाइप्स. हमने जो मेमोरी हमारे डेटा टाइप्स को अलोकेट करी है उनको पॉइंट आउट करने के लिए, उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो नेम की ज़रूरत होगी वो रहते हैं वेरिएबल, ताकि हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर पाए, उन्हें आइडेंटिफाई कर पाए. इसलिए हमें स्पेशल नेमिंग कन्वेंशन उनके लिए फॉलो करना पड़ेगा. एवरी वेरिएबल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर, ताकि हम उसे डिफ्रेंशिएट कर पाए दूसरे वेरिएबल्स से. नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द नेमिंग कन्वेंशन वी हैव टू फॉलो टू डिक्लेयर अ वेरिएबल. So we try to take an example of int variables, like I declared int with a, then we can use underscore, then after a name like ar, and int, let me take a number, and then after ar, then I take a character underscore, then number, then ar, then okay, any different type of symbol, okay, ar, then ar10, okay, ar dollar. Okay, so this are the different types we can try to declare our variables. So let me check what are the naming convention is appropriate to declare a variable. Okay, so save this file. Okay, files में आएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, java c variable.java. So we get an error at line number 7. So हमें 7 लाइन पर एरर आ रही है. एंड what is the error? Int 10r. So we get the error in 10r, so we have to remove. We cannot declare वेरिएबल लाइक दैट. पहले हमें नंबर नहीं लेना है, या तो हम पहले वेरिएबल कैरेक्टर ले सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर इज द ओनली स्पेशल कैरेक्टर विच इज़ अलाउड टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स. सो हम या तो अंडरस्कोर लेंगे या इस डायरेक्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट मी चेक. और किसी में एरर दे रहा है, कंपाइल करेंगे अगेन. okay, now it is successfully compiled. We can also use dollar at the starting of the variables. Okay, so we do not use the dollar sign at starting of variables, because it can conflict after when we do a high level of programming. So we are using simple naming convention which is start from the character, and at some point we are using underscore also. Okay, so these are the naming convention we can follow to declare a variables. So now we discuss how many types of variables are available in Java. So the types of variables can be defined according to their accessibility and their scope. So there is three types of variables are available. First is instance variable, other is class variable, and the other is local variables. So these are the three types of variables present in Java. Now let's discuss what are the three types. So first start with a local variable. Local variable are the simple which we are declared in a method, a specific method, and their scope is limited to that method. Like I declared a
integer variable, value variable with a value 10. So the scope of that variable is limited up to that method only. We cannot access that variable outside that method. Let me try to access. ओके हम पहले इसे मेथड में एक्सेस करके देखते हैं एंड ओके लेट्स सी. ओके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, कंपाइल करके देखते हैं. ओके जावा. ओके तो हमने इजीली उसे मेथड के अंदर एक्सेस तो कर लिया. बट व्हाट हैपन वी ट्राई टू एक्सेस. जूम कर लेते हैं. व्हाट हैपन वी ट्राई टू एक्सेस आउटसाइड द मेथड. लाइक मैं इसे यहाँ पर एक्सेस करके देखता हूँ. ओके सिंपल सा कोड प्रिंट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे. ओके हमने यहाँ कॉपी कर लिया है. अब हम कंपाइल करके देखते हैं. ये हमें बता देगा कि एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, लाइक वो हमें बाहर उसे एक्सेस करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है. ओके so we cannot access the local variables outside the method. Okay so these are the local variables. हमने इस मेथड में इसे डिक्लेयर करा. अब इसके मेथड के बाहर हमने यहाँ उसे एक्सेस करने की कोशिश करी तो उसने एरर दे दी. नाउ व्हाट आर द क्लास वेरिएबल्स. ओके फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंस्टेंस वेरिएबल. सो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं जो कि क्लास के अंदर डिक्लेयर रहते हैं और वो पूरी क्लास के अंदर एक्सेसिबल रहते हैं. Like I declare here int value is equals to 10. Okay and now here I created a method public void मेथड नेम से ही मेथड बना लेते हैं. ओके सो मेथड बना ली हमने एंड इस मेथड में हम इस वैल्यू को एक्सेस करके देखेंगे. ओके बट इस मेथड को भी हमें एक्सेस करने के लिए यहाँ पर इसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा. सो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम सिंपली इस अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि होगा वेरिएबल टाइप का. वेरिएबल वी आर इज इक्वल्स टू. ओके न्यू वेरिएबल नाम से हमने हमारा इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है और वी आर के थ्रू हम इस मेथड को एक्सेस करेंगे. ओके सो इट इज़ आवर कोड. आई थिंक इट्स विजिबल. ओके सो अब इसे कंपाइल करके देखते हैं. now our code is successfully compiled and we can access successfully the data outside the method. So this type of variables are known as the instance variable which are declared in a class and which can be accessed through all the methods available in a class. Class variable are similar to instance variable but they are static in nature, so we can access them within a static method or non-static method. अब लाइक ये क्वेश्चन अराइज होता है कि यार हमने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों करा इस मेथड को एक्सेस करने के लिए. बिकॉज वी कैन नॉट एक्सेस द नॉन स्टैटिक मेथड और वेरिएबल विद इन अ स्टैटिक कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट. ओके सो हम ऐसा होता है कि स्टैटिक के अंदर से हम किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड को ना तो एक्सेस कर सकते हैं ना ही नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं. इसलिए हमने इस क्लास का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ा and after that creating the object of that class we can access that non-static method. so हम non-static method को access करने के लिए हमने इस class का एक object create करना पड़ा. now अब हम नहीं चाहते कि हमें इसका object create करना पड़े, हमारे variable इस तरह से define हो कि हम उसे इस class में तो easily access कर पाएँ. ओके सो हम class variable बनाएंगे. सो क्लास वेरिएबल में हमें सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड ही यूज ऐड करना है. सो इट बिकम अ क्लास वेरिएबल नाउ. सो वी कैन एक्सेस इट विदाउट क्रिएटिंग अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. लाइक मैं यहाँ पर डायरेक्ट उसे एक्सेस करूँगा. मैं उसे यहाँ भी प्रिंट करा के देख सकता था इंस्टेंस वेरिएबल को बट इट गिव्स अ एरर बिकॉज वी कैन नॉट एक्सेस द नॉन स्टैटिक वेरिएबल और मेथड
within a static constant or context. Okay, अब now class variable we can access. क्लास वेरिएबल को एक्सेस करके देखेंगे, हम इस मेथड को भी हटा देंगे, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, आई थिंक द कोड इज़ विजिबल. सो हमने यहाँ पर एक क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करा है जो कि स्टैटिक होता है. क्लास वेरिएबल स्टैटिक इन नेचर, दे आर ऑल्सो नोन एज स्टैटिक वेरिएबल्स. ओके, सो स्टैटिक है तो हम इसे स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में से एक्सेस कर सकते हैं. नाउ कोड को कंपाइल करेंगे. सो एरर इस बात की आ रही है कि हमने स्टैटिक से आइडेंटिफायर की जगह लगा दिया है. सो हम स्टैटिक को आइडेंटिफायर के पीछे लगाएंगे. ओके, नाउ इट्स फाइन, नाउ आवर कोड इज फाइन. ओके, अब कंपाइल करके देखते हैं. नाउ द कोड इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड and java.variable. Okay, so we can easily access the class variable in a static context. So this is the types of variables in Java. So thank you for watching this video.